Bismillah Rahman Rahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 28 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM705. Students, let's discuss what was included in our last lecture. We will have a recap of that, and after that we will start today's lecture. So, our last lecture included following topics. The first topic was another way of changing relationships. Initially, we saw how to add relationship to the activities. So first of all, we just added it in a default manner. Then we studied how to change the relationship, how to assign new relationship, how to assign new activity as a predecessor on the predecessor tab at details view, and then removing any relationship, adding lag. We performed this action, and then after that, in our previous lecture, we studied how to change the relationship. What is another way of changing that relationship? And that another way of changing a relationship was to bring your cursor on the relationship line. You will be shown the up arrow. On the up arrow, you will double click, and you will be shown with a dialog box. On the dialog box, there will be option to change the relationship from finish to finish, to start to finish, or whatever the case is, and then adding lag over there. So you can add lag at that time also. So whatever lag is and whatever the relationship you want to update, you will do that and press OK. Students, after that we studied how to change the height of the row of your table. आपका जो टेबल है उसकी हाइट कैसे चेंज करेंगे, and for that what we did was we just went to the view, and there was an option of font, table and rows. We clicked that, and we were shown with a dialog box. On that dialog box there was a check box. We unchecked it, and we entered, in fact, the height of the row which was required. So after changing the row height, we discussed about changing the background color. We changed the background color of the whole screen, and we discussed that this color is just for viewing. It is not for printing purposes. So when you will print, this color won't be shown as a background of your printed page. After that, progress spotlight. We discussed a unique feature which was different from other products, and a feature which made this product even more valuable. That was progress spotlight. And the worth of progress spotlight was that you can track the activities falling in the specific interval, and this will help you in tracking and progress updation of your complete plan. After that, we studied the curtains. The curtains was a concept, and it was just it was to separate one phase from another, and in those phases we saw that it was based on the time scale, and we can add multiple curtains. We can show them all, or we can hide them all. So curtains was also a good feature for phase wise distribution based on duration of the project plan. And then we discussed about time scale, and two things were included in the time scale. One was that from where your time scale should start, and the selected option was project start. We saw other options as well, and we discussed that you can change it if there is any requirement. And then changing the header of the time scale, we changed the color of that time scale, and this option was also available in this view time scale dialog box. Students, once done with this thing, now let's discuss what is included in today's lecture. In our today's lecture, we will try to cover all these topics. If something is left from today's lecture, it will obviously be discussed and covered in the next lecture. So today we have got these topics. The first topic which we have got is printing. So we will discuss about the printing, that how you can print your plan, and how you can print your plan
with respect to the specific duration. So printing of the plan will be discussed. After that, WBS will be discussed in detail. We'll discuss that how WBS in Primavera is different from that in Microsoft Project. We will discuss creation of WBS dictionary. This will be a very detailed discussed topic today, and then associating activities to WBS, what is need of it, why we do it, why it is important, or what are other ways of doing it. So we will discuss all these things, and then we will come to user defined fields. We will discuss user defined fields, and in user defined fields we will discuss that how you need to enter, if you need to view a field or a column which do not already exist in the Primavera, and you want to add it, how you can add it, what are different types available, how to add a number column, how to add a text column, and how to add an indicator column. So all these things will be discussed in today's lecture, and then if we are left with the time, we will try to discuss the organizational breakdown structure, that what is organizational breakdown structure, how it is made in the Primavera, how you can enter resources on the OBS, and then activity codes. This is also a very comprehensive topic, that what are activity codes, what is special in this topic, why we have in fact included this topic over here, what is the purpose of it. We will be discussing all these topics today. So after going through this outline, we should start our lecture for today. Students, remember one thing, that when working on your project, you should identify risks. Okay, when you are in risk identification process, try to write down every risk you can assume, anything and everything which can occur. Write it down. Even if it is a knife cut, write it down. Whatever it is, whatever risk can occur, jot down all the risks of your project, and then look for the probability, that what is the probability of this thing. Okay, and then probability, and then check the impact, that what is impact of this risk, how probably that this risk can happen, and what if this risk happens, what will be the impact. Suppose you can say that you can check probability from 1 till 5. You can say that 1 means very less probability, then 2 means even more, 3 means more than 2, and so on and so forth. And in case of impact, you can say that you can also have a scale from 1 to 5, that 1 means very low impact and 5 means very significant impact. So multiply these both things, and the result which you will have will basically tell you that what is the level of risk. What is the level of risk? So just telling you that when working on the project, accept the risk identification process very open-heartedly, invest time on it, and trust me that this time won't be wasted in your project. With all these words, let's start today's lecture, that what is included in today's lecture. Today we have got the first topic as printing. So स्टूडेंट्स, जब आप काम कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट प्लान पे, तो आपके प्लान में आपको प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. सो प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल कॉमन जिस तरह से हम करते हैं, फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन है. अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आपको मसला नहीं आएगा. आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा. आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. स्टूडेंट्स, एक बात आपके जहन में होगी कि जो हमारा जो स्क्रीन होती है, जो नॉर्मली इस तरह से आपकी स्क्रीन होती है, यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉलम्स, यहाँ से आपका सेपरेटर होता है, यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉलम्स आ रहे होते हैं रिगार्डिंग योर एक्टिविटीज, एंड देन यहाँ से आपका टाइम स्केल. ना आपने यहाँ पे नीचे आपके पास, अगर आप गौर से देखें तो इस जगह पे स्क्रॉल बार आ रही होती है.
यहाँ पे स्क्रॉल बार आपके पास आ रही होती है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यू कैन स्क्रॉल थिंग्स, ठीक है, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसको व्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास 10 कॉलम एडेड है, सपोज इस जगह पे आपके पास 10 कॉलम एडेड है। अगर 10 कॉलम वो प्रिंट करेगा तो पूरी शीट पे वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे आपके पास, तो गैंट चार्ट तो आपके पास बचेगा, जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो ये डिवाइडिंग लाइन होती है, इसको आप एडजस्ट कर रहे होते हैं खुद ही उतनी इंफॉर्मेशन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस वक्त, एंड देन यू वांट टू प्रिंट इट। तो अगर आप आइडियल सिनेरियो में अगर आप प्रिंट करना चाहें, आप कहते हैं यार जैसा मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऐसा ही प्रिंट हो जाए, इसका मतलब है कि जितनी एक्टिविटीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं वो यहाँ पे नजर आती रहें, जितनी यहाँ नजर आ रही हैं वो यहाँ नजर आती रहें, और ये डिवाइड लाइन के हिसाब से प्रिंट हो जाए। जितनी एक्टिविटीज यहाँ पे डिवाइड लाइन से इस तरफ नजर आ रही हैं ये सारी, और जितना गैंट चार्ट नजर आ रहा है ये सारा का सारा एरिया जितना आपके पास है, ये सारा एरिया आपने प्रिंट कर देना है। सो दिस इज द एरिया जो कि आपका गैंट चार्ट है, एंड दिस इज द एरिया विच इज योर टाइम लाइन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली you want this thing and then you want this whole thing to be printed. Okay, so what you do is for doing this, for printing on this divide line, आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आके आप ऑल कॉलम को अनचेक कर देते हैं। so what you do, you uncheck this all column. This means you don't want to print। देखिए आपने इस तरह से किया था ना, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं सिर्फ इसका जो गैंट चार्ट सपोज इस तरफ है, गैंट चार्ट इस तरफ है, यहाँ पे आपका गैंट चार्ट है, जो आपका ये एरिया है यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम्स हैं डिफरेंट, आप सारे कॉलम प्रिंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं ये जो डिवाइड लाइन है इस डिवाइड लाइन के हिसाब से प्रिंट कर दो। सो आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक हो गया। सो दिस मीन्स जब आप इसको अनचेक कर देंगे तो दिस विल प्रिंट अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के हिसाब से आप इसको प्रिंट कर लेते हैं। सो जैसे ही आप इसको अनचेक कर देंगे, जिस तरह स्क्रीन पे आपके पास होगा चीज उस तरह से प्रिंट होकर नजर आना शुरू हो जाएगी। नाउ सेकंड थिंग इज कि प्रिंट करना कितना है, कितना प्लान प्रिंट करना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है सपोज करें 1 जून 2015 से, एंड इट इज गोइंग टिल 12 दिसंबर 2017 तक। नाउ इतना बड़ा ड्यूरेशन प्रिंट करना चाहते हैं कि आप नहीं करना चाहते, कितना प्लान प्रिंट करना है। आप कहते हैं यार फॉर टाइम बीइंग मैं जो प्रिंटिंग चाहता हूं वो चाहता हूं 1 जून से लेकर 2015 से लेकर और ये चला जाए 1 जून 16 तक, 1 जून 16 तक ये प्रिंट हो जाए। सो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे टाइम स्केल स्टार्ट और यहाँ पे स्टार्ट इंटरवल और एंड इंटरवल आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए टाइम स्केल स्टार्ट कहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी और टाइम स्केल फिनिश कहाँ पे फिनिश करनी। जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक पे शो भी किए हुए हैं, ये सिलेक्ट करके आप और फिर कितना प्रिंट करना है, नज़र कितना आना चाहिए, ऑल कॉलम नज़र आने चाहिए या डिवाइड लाइन से नज़र आना चाहिए। ठीक हो गया, आप ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं एंड देन यू क्लिक अप्लाई एंड यू क्लिक ओके। अप्लाई प्रेस करके आप ओके प्रेस कर देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो प्रिंट आएगा वो प्रिंट इस ड्यूरेशन के अंदर और इस तरह का प्रिंट आएगा। सो दिस इज हाउ you can modify printing. You can play with other options as well. सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हम हर डायलॉग बॉक्स पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, बट कोशिश जो हमारी है वो ये है कि वो तमाम चीज़ें जो कि प्लान करने के लिए आपको पता होना ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर दें और उसके बाद फिर आप जो है यू कैन फर्दर एक्सप्लोर द ऑप्शंस व्हेनेवर यू गेट द टाइम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होनी है अबाउट WBS।
आप लोगों को याद है कि हम WBS कैसे बनाते थे? हमने WBS का एक तरीका देखा था, वो तो एक तरीका क्या था, दैट वाज कि सबसे ऊपर इस तरह की डायग्राम देखी थी हमने, प्रोजेक्ट आएगा, देन प्रोजेक्ट के नीचे कंट्रोल अकाउंट्स आएंगे, कंट्रोल अकाउंट्स, एंड देन कंट्रोल अकाउंट्स के नीचे वर्क पैकेजेस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, बाय बुक्स द WBS इज टिल वर्क पैकेजेस। वर्क पैकेजेस पे आके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। एंड देन यू लिस्ट डाउन एक्टिविटीज समवेयर, एंड देन उन एक्टिविटीज को आप बताते हैं यार कि कौन सी एक्टिविटी किससे बिलोंग करती है, ठीक हो गया। सो बाय बुक्स इस तरह से होता है, किस तरह से आप कहते हैं कि सपोज कीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, अब ये आपका आ गया प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। अब कंट्रोल अकाउंट्स क्या आ जाएंगे इसके? इसका पहला कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा आपका डिजाइनिंग, दूसरा आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, एंड तीसरा आपका क्या आ जाएगा, फिनिशिंग। ये तीन आपके पास बेसिकली आपके तीन कंट्रोल अकाउंट आ गए। अब हर एक के नीचे वर्क पैकेजेस आ जाएंगे, जिस तरह डिजाइनिंग के अंदर आ सकता है आर्किटेक्चरल डिजाइन, एंड देन इसके अंदर आ सकता है स्ट्रक्चरल डिजाइन, एंड देन इसका फर्दर भी इवन वर्क पैकेजेस हो सकते हैं कि आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन में आपकी लाइन ड्राइंग, एंड एक इसके अंदर आपका आ जाए 3D मॉडल। नाउ दिस इज हाउ आपका ये आपका नंबर आ गया 1, दिस इज नंबर 1, दिस इज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.1.1, 1.1.2 एंड दिस इज 1.1.1.1 एंड 1.1.1.2। इस तरह से आपका WBS क्रिएट होता चला जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक जगह पे एक्टिविटी लिस्ट बनती है, एक्टिविटी लिस्ट में एक्टिविटीज लिखती जाती हैं, एंड देन कहा जाता है यार कि ये जो एक्टिविटीज हैं ये एक्टिविटीज बिलोंग करती हैं 1.1.1.1 से, और ये जो एक्टिविटीज हैं यहां से लेकर यहां तक ये बिलोंग करती हैं 1.1.1.2 से। सो आप लोग एक्टिविटीज की आपने कहा जी कि ये एक्टिविटीज जो है बेसिकली ये इससे बिलोंग करती हैं और ये इससे बिलोंग करती हैं। दिस इज द वे आप WBS बना रहे होते हैं। अब आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमने कैसे किया था। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमने जस्ट ये किया कि हम लोगों ने पहले सारी एक्टिविटीज लिख दी, फिर उन एक्टिविटीज के ऊपर हम उनके जो वर्क पैकेजेस के नाम थे वो हमने इंसर्ट किए और इन एक्टिविटीज को एक लेवल इंडेंट कर दिया। इन एक्टिविटीज को एक लेवल इंडेंट कर दिया। जब हमने इन एक्टिविटीज को एक लेवल इंडेंट किया तो ये एक्टिविटीज पार्ट बन गई उसका। तो उसमें इस तरह से था, इट वाज लाइक दिस, प्लस साइन था, ठीक है, और यहाँ पे वर्क पैकेज नाम था और इसके अंदर जो सब चीजें थी वो यहाँ पे आ रही थी। स्टूडेंट्स, मगर Primavera is a pure project management tool। ये proper project management tool है and it follows the books rule। जो project management की books कहती हैं ये उन्हें follow करता है, और exactly जिस तरह से हमने ये WBS बनाया, जिस तरह से भी हमने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की, exactly इस तरह ही Primavera करता है कि आप पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर आप कंट्रोल अकाउंट्स लिखेंगे, फिर आप वर्क पैकेजेस लिखेंगे, एंड देन जो एक्टिविटीज हमने लिस्ट डाउन की हैं उन एक्टिविटीज को आके एसोसिएट करेंगे। यहाँ पे उन एक्टिविटीज को एसोसिएट करेंगे, और जब जब आपके ज़हन में कोई एक्टिविटी आती जाएगी आप साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि ये किस वर्क पैकेज का हिस्सा है। गॉट माय पॉइंट?
So this is how the WBS in Primavera is different from the WBS in Microsoft Project. ये उससे different है. So let's see कि इसमें किस तरह से होता है. WBS क्रिएट करने के लिए what you do, आप प्रोजेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और प्रोजेक्ट के मेन्यू में आपके पास WBS का ऑप्शन है. ये हर प्रोजेक्ट का तो WBS होगा, दैट्स वाई आप प्रोजेक्ट के मेन्यू में गए और आपने WBS को क्लिक कर दिया. तो जैसे ही आपने WBS को क्लिक किया तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. इस डायलॉग बॉक्स में आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आपके पास ये ऊपर एक छोटा सा एरो आ रहा होता है इस तरह का, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये आपको स्पेशल ऑप्शंस बताता है, स्पेशल ऑप्शंस. सो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास स्पेशल ऑप्शंस खुल जाएंगे और इन स्पेशल ऑप्शंस में आपने जाना है ग्रुप एंड सॉर्ट में, और ग्रुप एंड सॉर्ट में आपने डिफ़ॉल्ट को क्लिक कर लेना है. ग्रुप एंड सॉर्ट में डिफ़ॉल्ट को क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो लेआउट है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. ठीक हो गया. यू नीड डिफ़ॉल्ट लेआउट. नाउ जब डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आप आ जाएंगे तो आपके पास अब आप इस स्क्रीन पे खड़े हैं. इस स्क्रीन को ज़रा गौर से देखिए. तो इस स्क्रीन पे आपके पास एक ऐड का बटन है. ठीक हो गया. ऐड का बटन क्या करेगा? ऐड का बटन हमेशा विल ऐड अ नोड टू द WBS. ये क्या करेगा कि इसमें एक नोड नई ऐड कर देगा. जिस तरह से ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इस तरह की एक नई नोड ऐड कर देगा. ठीक हो गया. अगर किसी नोड को अगर डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और सेलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस कर दें तो ये उस नोड को वहाँ से डिलीट कर देगा. ठीक है जी. ये उस नोड को वहाँ से डिलीट कर देगा, उसको और उसके तमाम चाइल्ड्स को. ठीक है. इसको मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ. डिलीट क्या करेगा? विल डिलीट नोड एंड इट्स ऑल चाइल्ड्स. उसके जितने उसके नीचे उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिलीट कर देगा. आप किसी एक WBS की पूरी लेग को कट करके कहीं और जाके पेस्ट कर सकते हैं, या कॉपी करके उस तरह की लेग कहीं और पेस्ट कर सकते हैं. जिस तरह अगर आपने ये स्क्रीन आप देखी तो अगर मैं यहाँ से डिज़ाइन को कट कर लूँ, सिर्फ मैं ओनली डिज़ाइन को कट करूँ तो डिज़ाइन के साथ ये सारा कट होके और इसको यहाँ पे अगर आके पेस्ट कर दूँ तो फिनिशिंग नीचे आ जाएगा. सो इस तरह से आप जो है कट एंड कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं. पेस्ट का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है. स्टूडेंट उसके नीचे 4 एरोज हैं. इन 4 एरोज का मतलब क्या है? अगर आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखें आप बिल्कुल एंड पे, तो इन 4 एरोज का मतलब क्या है जो कि आपको इस तरह से नज़र आ रहे हैं. मैं यहाँ पे टॉप पे बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ये 4 एरोज का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडेंट, आउटडेंट, सॉर्ट अप, सॉर्ट डाउन. इसको मूव अप करेगा या मूव डाउन करेगा. तो इन 4 ऑप्शंस को यूज करते हुए आपका जो ये ट्री बन रहा है, इस ट्री को आप अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. अभी हम ये प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे चीज कि ये किस तरह से होती है. उसके बाद स्टूडेंट्स, वंस जब आपके पास आपका WBS बन जाए तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए कि एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा है आपको इस जगह पे. इस आइकन का पर्पस है, इसको कहते हैं चार्ट व्यू. ये आपके जो WBS आपने क्रिएट किया उसका चार्ट व्यू क्रिएट कर देगा. ये देखिए जो चीजें ने वहां लिखी थी उनको एज अ चार्ट इसने दिखा दिया. नंबरिंग भी यहाँ पे कर दी. देखिए इसने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी उसकी, ये देखिए. और नंबरिंग के साथ उसने उसका नाम भी दे दिया और नाम के साथ उसका EPS भी बता दिया. ठीक हो गया. सो सारी चीजें उसने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट कर दी. इसके बाद जब आपका WBS बन जाएगा, WBS बनने के बाद जो एक्टिविटी है वो ये है
कि आप उस WBS में एक्टिविटीज ऐड करें। ठीक है, जब डिजाइन का वर्क पैकेज बन गया, अब डिजाइन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है वो आप यहां पे बताएंगे आगे। ठीक है, सो हर एक आप सारी एक्टिविटीज को किसी न किसी WBS को असाइन कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैंने, अब आपने सपोज पहली इस एक्टिविटी को किसी को असाइन करना है, सेलेक्ट द एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी सेलेक्ट कर लें। बॉटम लेआउट में आपके पास देखिए जनरल का टैब आ रहा है पूरा। जब जनरल के टैब में आते हैं तो आपको यहां पे क्लियरली WBS नजर आ रहा है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखिए 3 बटन है, जो मैंने आपको हमेशा दिखाया है कि इस तरह से जो तीन डॉट्स वाला बटन है, इसका मतलब होता है ब्राउज। जैसे आप ब्राउज करेंगे तो आपके पास ब्राउज करते साथ ये खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स क्या है, इसमें जो WBS बनाया हुआ है आपने वो आपको नजर आ रहा है। अब आप कहते हैं यार कि मेरी जो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो मैंने सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, ये एक्टिविटी किस WBS बिलोंग करती है? कहते हैं यार ये इस वाले WBS से बिलोंग करती है, ये इस WBS से बिलोंग करती है। सो आपने वहां से इसको क्लिक किया और यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते साथ क्या हुआ कि आपके पास सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते साथ आपके पास यहाँ पे वो WBS शो होना शुरू हो जाएगा। सो आपने एक्टिविटी को एसोसिएट कर दिया विद WBS। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप क्या करते हैं, एसोसिएट एक्टिविटी टू WBS। आप एक्टिविटी को एसोसिएट करते हैं WBS के साथ, जो चीज़ हमने पीछे करके देखी। यही काम अगर आपने थोड़ा आसान तरीके से करना है, एक और तरीका उसका ये है कि आप WBS का नाम का कॉलम ऐड करें। ठीक हो गया, एक कॉलम ऐड करें WBS का और वहां से WBS सेलेक्ट करते जाएं। ठीक है, WBS सेलेक्ट करते जाएं वहां से। ये भी चीज़ भी हम करके देख लेते हैं। नाउ जब ये WBS हो गया, अब लेकिन आपकी एक्टिविटीज, आपको याद होगा कि वहां पे तो हमें इस तरह नजर आ रही थी MS प्रोजेक्ट में, इस तरह, फिर ये इसकी फर्दर एक्टिविटीज, फिर ये WBS इस तरह, फिर इसकी एक्टिविटीज, फिर ये इस तरह, फिर इसकी एक्टिविटीज, फिर ये इस तरह, फिर एक्टिविटीज। सो ये चीज़ भी नजर आ रही थी वहां पे। यहां तो भी इस तरह नजर नहीं आ रही। और इस तरह देखने के लिए आप क्या करते हैं कि आप व्यू में जाते हैं और व्यू में ग्रुप एंड सॉर्ट को क्लिक करते हैं। जब आप ग्रुप एंड सॉर्ट को क्लिक करते हैं तो आप इस डायलॉग बॉक्स पे आ जाते हैं, जो डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया, इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए तो पहली ग्रुपिंग तो किससे हुई हुई, जो आपकी फर्स्ट ग्रुपिंग है दैट इज प्रोजेक्ट की बेस पे। सेकंड ग्रुपिंग आप कर दें WBS के नाम की बेस पे। ठीक हो गया, दूसरी ग्रुपिंग आप WBS के नेम की बेस पे कर दीजिए। सो जैसे ही आप WBS की नेम की बेस पे करते हैं, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो आपको इस तरह से, आप देखिए कि एनालिसिस की एक्टिविटीज ये हैं, डिजाइन की एक्टिविटीज ये हैं, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज ये हैं। नाउ अब आपका WBS देखिए किस तरह बन गया। WBS का नाम क्या है, डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। सो इस तरह से सारी एक्टिविटीज के जो नेम हैं वो ऑटोमेटिकली अपने अपने WBS के अंडर आ गए। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है, इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। हम लोग कर्टन्स जो हैं उनको हाइड ऑल कर लेते हैं। अब हम लोग जो है सबसे पहला काम, प्रिंटिंग हमने जो देखा वो करके देखते हैं कि प्रिंटिंग किस तरह से होती है। सो फाइल में आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही आप पेज सेटअप में आते हैं तो पेज सेटअप में आपके पास ऑप्शंस में 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना। तो आप कहते हैं यार कि प्रोजेक्ट स्टार्ट से अगर आप कहोगे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट से करेगा, और नेक्स्ट कॉलम में आप सेलेक्ट कर लो, आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट से प्रिंट करूँगा और
प्रोजेक्ट की लास्ट फिनिश डेट तक इसको मुझे प्रिंट कर दो, ये पूरा प्लान प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ कोई डेट देना चाहो, आप कस्टम डेट में आओ, आपको यार मुझे यहाँ से प्रिंट स्टार्ट करो और कस्टम डेट में जाओ और कहो यार यहाँ तक मुझे प्रिंट कर दो, ये आपको इस ड्यूरेशन के दरमियान की सारी प्रिंटिंग दे देगा। ठीक हो गया। अब प्रिंटिंग कैसे करनी है, ये देखिए, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब कहते हैं यार कि मुझे ना मेरे सारे कॉलम्स तो ये हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा गैंट चार्ट जो है वो पूरा नहीं आ रहा, सो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे ना यहाँ तक प्रिंट दिखा दो, इससे बाकी कॉलम में नज़र ना आए, बस मुझे ये चीज़ नज़र आए और ये मेरा सही प्लान है और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ ना। आप इस डिवाइड लाइन के हिसाब से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइल, पेज सेटअप, ऑप्शंस, और यहाँ पे ऑल कॉलम को अनचेक कर देते हैं ताकि तमाम के तमाम कॉलम प्रिंट ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो कॉलम प्रिंट हो जो कि डिवाइड लाइन से उस तरफ है। ठीक हो गया। आप इसको ओके कर देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप प्रिंटिंग की ऑप्शन सेट कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं WBS। सो WBS के लिए सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप प्रोजेक्ट में आए और WBS क्रिएट करें। ठीक है जी। तो हमारे WBS में पहले ये देखिए, मुझे यहाँ पे ऑन राइट टॉप मुझे यहाँ पे देखिए कमांड बार में ऐड का बटन नज़र आ रहा है। प्रीवियस वर्जन्स में ये ऐड का बटन थोड़ा वाइड था और ये अब लिखा होता था ऐड, अभी इन्होंने जस्ट इसको इन अ मॉडर्न वे जस्ट छोटा सा प्लस बना दिया है। आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए एक नोड आपके पास ऐड हो गया। सो इस नोड को आप क्या कहते हैं, इस नोड का नाम हम रख लेते हैं सबसे पहला इनिशिएशन। हम कहते हैं हमारा एक WBS का जो वो वर्क पैकेज होगा वो इनिशिएशन होगा। एंड देन हम कहते हैं कि इनिशिएशन के अंदर एक और पैकेज जो हमारा होगा वो होगा सपोज कीजिए डिज़ाइन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे। लेकिन आप ये देखिए गड़बड़ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे कि आपका सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर इनिशिएशन है और डिज़ाइन भी है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, वो उसके अंडर इनिशिएशन का पार्ट नज़र आ रहा है, जबकि ये डिज़ाइन इनिशिएशन का पार्ट नहीं है, ये उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। सो मैं इसको इस लेवल पे लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास एरो आ रहा है मूव लेफ्ट, मैं इसको एक लेवल आउटडेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब 1.1 और 1.2 इनिशिएशन हुई, फिर डिज़ाइनिंग हुई, डिज़ाइनिंग के बाद डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो मैं एक और ऐड करता हूँ, देखिए, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ डेवलपमेंट। ठीक हो गया। एंड डेवलपमेंट के बाद ये देखिए अब डेवलपमेंट भी इस जगह पे नहीं है, डिज़ाइन का पार्ट तो नहीं है, प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसको भी मैं एक लेवल बाहर मूव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एक और नोड ऐड कर लेता हूँ, और वो नोड क्या है, वो नोड है इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर, प्रोजेक्ट का जो क्लोज आउट है। ठीक हो गया। ये मैंने तमाम के तमाम जो नोड्स हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर लिए, और इसका जो लेआउट है वो मैं ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग मैंने डिफ़ॉल्ट मैनर में कर ली। ये आप देखिए कि अब मेरा प्रॉपर जो मेरा WBS है वो आपको नज़र आ रहा है। WBS मेरा स्टूडेंट्स बन चुका है। अब इस WBS को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अपना जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान है। सो हमने कहा था कि पहले तो हम WBS बनाएंगे। अच्छा, WBS बन गया, लेकिन ये ट्री फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं ऑप्शन है ऐसा, क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए चार्ट व्यू का ऑप्शन मुझे दे रहा है। चार्ट व्यू के ऑप्शन में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो जो मैंने WBS बनाया था उसको देखिए, इसने कहा सैम्पल IT प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर होगा, इनिशिएशन होगा, डिज़ाइनिंग होगा और डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से मेरा जो है WBS वो बनेगा। और अगर मैं चार्ट व्यू बंद कर दूं, मैं दोबारा से टेबल व्यू पे आ जाऊं और इसको इस तरह से सॉर्ट करूं एंड देन अगेन चार्ट व्यू पे जाऊं, ये देखिए चार्ट व्यू मेरे सामने आ रहा है।
सो टेबल, देयर इज टेबल व्यू एंड देयर इज चार्ट व्यू. सो मैं इसकी टॉगलिंग कर सकता हूँ. आई कैन टॉगल बिटवीन बोथ. वंस द WBS इज डन, अब मेरे पास देखिए, अब मैं एक्टिविटीज मोड में आया. देखिए ये WBS मोड है, ये एक्टिविटीज मोड है. ये WBS मोड, ये एक्टिविटीज मोड. सो आपको मोड जहाँ नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, मैं एक्टिविटीज मोड में आया. अब मैंने ये बताना है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की एक्टिविटी है ये किस WBS से बिलोंग करती है, ये किस WBS का पार्ट है. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं जनरल के टैब में आ गया. जनरल टैब में मेरे पास यहाँ पे WBS नज़र आ रहा है देखिए, और यहाँ पे WBS का नाम नज़र आ रहा है. मैंने ब्राउज क्लिक किया, ये देखिए. अब मैं कहता हूँ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो इनिशिएशन का पार्ट है. ये देखिए, मैंने इसको डबल क्लिक किया, ओके हो गया. रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आ जाता हूँ, ये भी मेरा इनिशिएशन का पार्ट है. मैं यहाँ आया और इनिशिएशन सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, लेकिन अब इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बार बार. सो मैं यहाँ पे एक कॉलम जो है वो इंसर्ट करवाता हूँ. कॉलम फाइंड WBS. मैं एक WBS का कॉलम इंसर्ट करता हूँ. ये देखिए WBS आ गया मेरे पास, और मैं इसको इस तरफ मूव करवा के थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी नेम के आगे WBS शो कर देता हूँ. अप्लाई, ओके. ये देखिए ये WBS आ गया मेरे पास. जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ये आ गया. अब डेटाबेस डिज़ाइन मेरा डिज़ाइन का पार्ट है. इसी तरह से जो मेरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है ये भी डिज़ाइन का पार्ट है. जो मेरा फ्रेमवर्क सिलेक्शन है ये भी डिज़ाइन का पार्ट है. डेवलपमेंट जो है ये डेवलपमेंट का पार्ट है. तो देखिए मैं हर एक एक्टिविटी के को अपने उसके वर्क पैकेज के पास रख रहा हूँ. ठीक है, मैंने इस तरह से वर्क पैकेज बना लिए. ना मैं एक्टिविटी उठा रहा हूँ और हर एक के अंदर डाले जा रहा हूँ. ठीक है, टेस्ट केस डेवलपमेंट जो है ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है. टेस्टिंग भी डेवलपमेंट का पार्ट है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर का पार्ट है. एंड क्लोजिंग भी इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर का पार्ट है. सो देखिए मैंने सबको WBS ऐड कर दिए. नाउ WBS ऐड करने के बाद मेरी मर्जी है मैं इस कॉलम को हाइड कर दूं. मेरा काम हो गया. मैं कॉलम्स में गया, मैं इसको सेलेक्ट किया, वापस मूव कर दिया, अप्लाई, ओके. मेरा सबको मेरे WBS असाइन हो चुके हैं. मगर आप देखिए कि अभी तक मुझे उस तरह से ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में देखी थी, और जिस तरह से भी हमने स्लाइड में देखा. मुझे उस तरह से ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही कि किसका WBS कौन सा है. मैं चाहता हूँ ग्रुपिंग हो. सो क्योंकि मैं चाहता हूँ ग्रुपिंग हो, इसलिए मैं व्यू में गया और ग्रुप एंड सॉर्ट बाय में आ गया. ग्रुप एंड सॉर्ट बाय ग्रुपिंग किस तरह करनी है, कस्टमाइज. ये देखिए यहां तो पहली ग्रुपिंग हुई है प्रोजेक्ट की बेस पे. ना दूसरी ग्रुपिंग किस तरह करना चाहते हैं हम WBS के बेस पे. सो यहां पे मैं कहता हूं, मैंने ऐसे किया और मैंने टाइप करना शुरू किया WBS. तो WBS आ गया, कैटेगरीज आ गई, WBS नेम. हमने कहा यार दूसरी जो ग्रुपिंग है वो WBS नेम के हिसाब से करो. क्लियर. सो जैसे ये करके मैंने अप्लाई किया, ओके किया. अब आप देखिए कि किस तरह से मेरा नजर आ रहा है. डिजाइन की एक्टिविटीज ये हैं, ये देखिए. डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर एक्टिविटीज ये हैं, और इनिशिएशन की एक्टिविटीज ये हैं. सो मेरा बेसिकली जो चीज़ जो एक्टिविटीज़ है ना वो हर एक एक्टिविटी जो है वो अपने रिस्पेक्टिव WBS के अंडर आ चुकी है. ये देख रहे हैं आप, सारी एक्टिविटीज़ अपने रिस्पेक्टिव WBS के अंडर आ चुकी हैं. ठीक हो गया. सो दिस इज़ हाउ जो हमारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने करके देख ली कि किस तरह से ग्रुपिंग करनी, किस तरह WBS बनाना, किस तरह से WBS की एलोकेशन करनी. ये सारा हमने करके देख लिया. नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स एंड लेट्स सी कि किस तरीके से बाकी चीज़ें जो है वो की जाती हैं. सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने WBS क्रिएट कर लिया. नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास दैट इज़ एडिंग यूजर डिफाइंड फील्ड्स. आपको कॉलम्स ऐड करने का तरीका बताया गया कि आपने किस तरह से कॉलम्स ऐड करने हैं. कॉलम फाइंड करने का तरीका बताया गया. मगर ये ऐसा मुमकिन है कि कोई कॉलम आपको ज़रूरत पड़े और वो कॉलम मौजूद ही ना हो.
हो सकता है ज़रूरत पड़े आपको, और वो मौजूद ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में देखा था कि अपनी मर्जी के कॉलम हमने ऐड किए, हमने इंडिकेटर्स का कॉलम भी ऐड किया, सब कुछ हो सकता है ना। सपोज कीजिए कि एक कॉलम हो सकता है वर्क क्वांटिटी का। आप कहते हैं वर्क क्वांटिटी में आपकी मर्जी का कॉलम है, आपका कोई फार्मूला है, आप वो इसमें मौजूद नहीं है। आप चाहते हैं यार यहाँ पे मैं जो है ना मैं लिखा करूँगा कि जिसका वर्क जो है वो 5 घंटे का होगा, मैं यहाँ लिखा करूँगा 5, जो 6 घंटे का होगा 6 लिखा करूँगा, ठीक है। कुछ भी, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपको कोई भी नंबर वैल्यू चाहिए, दिस इज, अब ये है नंबर। सिमिलरली अगर आपको एक कॉलम चाहिए जो कि जिसमें सपोज कीजिए मैनेजर का नाम आता हो, उस एक्टिविटी का जो मैनेजर है उसका नाम आता हो, और वो किस टाइप का होगा? टेक्स्ट होगा ना। देखिए नंबर टाइप क्या होता है? जिसमें 1 2 3 4 इस तरह डाटा आता हो। टेक्स्ट टाइप क्या होता है? जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आती हो, ABC या 1 2 3 कुछ भी आ सकता हो, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आती हो, उसको आप टेक्स्ट कह देते हैं। या हो सकता है आपको इंडिकेटर्स कॉलम जरूर पड़े, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में पढ़ा था। इंडिकेटर्स कॉलम क्या होता है कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर डाटा ग्राफिकली यू मे नीड टू ऐड एन इंडिकेटर्स कॉलम टू योर वर्क स्पेस। ठीक है, अगर आप किसी डाटा को ग्राफिकल मैनर में शो करवाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं एक ग्राफिकल इंडिकेटर्स कॉलम। ठीक है, ओके। ये तीनों तरह के हम कहते हैं यार कॉलम हमारे पास तो मौजूद नहीं है प्राइमवेरा में, तो हमें तो ऐड करने पड़ेंगे। तुम कैसे ऐड करेंगे? हाउ वी कैन डू इट? सो व्हाट यू डू, यू विल गो टू एंटरप्राइज। आप एंटरप्राइज में जाएंगे और एंटरप्राइज में यूजर डिफाइंड फील्ड्स का आपके पास ऑप्शन है। एंटरप्राइज में यूजर डिफाइंड फील्ड्स का आपके पास एक ऑप्शन है। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अगर आप देखें तो ये डायलॉग बॉक्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऐड। या वो कहता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी एक्टिविटी जो आप कॉलम करना चाहते हैं, वो फील्ड बनाना चाहते हैं, वो फील्ड ऐड कर लें। हम दो स्टेप्स में चलेंगे। पहला स्टेप हम करेंगे कि हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? कॉलम ऐड करेंगे। वो जो फील्ड या कॉलम जो क्रिएट करेंगे उसको ऐड करेंगे। सो पहले उसमें हमने कहा कि चले यार हम लोग 3 तरह के बना लेते हैं। एक हमने ले लिया कॉन्फिडेंस लेवल, जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में लिया था, सेम चीज यहां कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, ये कॉलम ऐसा होगा कि जो कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल शो करेगा ग्राफिकली। सो क्योंकि ये ग्राफिकली शो करेगा तो इसकी टाइप हमने क्या रख ली? इंडिकेटर्स। ठीक है, इसकी टाइप हमने रख ली इंडिकेटर। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इंडिकेटर। ठीक हो गया। सो आपने इंडिकेटर्स कॉलम ऐड कर लिया। उसके बाद आपने एक न्यूमेरिक कॉलम ऐड करना चाहा जिसमें नंबर वैल्यू आए। आपने कहा इसका ये नंबर इसकी टाइप होगी डाटा टाइप। देखिए डाटा टाइप कि किस तरह का डाटा इसमें आएगा, किस तरह का डाटा आप डालना चाहेंगे, और ये इसका नाम होगा क्वांटिटीज। ठीक हो गया। एंड देन आपने कहा यार कि मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक चाहिए, यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूओएम। आपने कहा मुझे यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहिए, तो आपने ये किया और आपने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया। मेरा टेक्स्ट टाइप का डाटा होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ठीक है। तो आपने कहा मुझे 3 फील्ड्स चाहिए, आपने तीनों फील्ड्स यहाँ पे ऐड करवा दी। ठीक है, नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप जब आपने ये तीनों फील्ड्स ऐड करवा दी, आपको याद था वहाँ पे इंडिकेटर कॉलम काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों ने पहले उस पर जाके उसकी वैल्यूज ऐड की, देन हमने फार्मूलाज लगाए, देन हमने इंडिकेटर के वो सिलेक्ट किए कि किस तरह का इंडिकेटर होगा। काफ़ी मुश्किल से हमने क्रिएट किया। यहाँ पे आपने जस्ट ये किया कि यहाँ पे सिर्फ बता दिया टाइप, डाटा टाइप में बता दिया कि इंडिकेटर टाइप है। जब इंडिकेटर टाइप बता दिया उसने इंडिकेटर कॉलम आपको प्रोवाइड कर दिया। दैट्स इट। सो थिंग्स आर क्वाइट ईजी।
ये देखिए ऐड कॉलम। अब आप क्या कर रहे हैं कि वो जो 3 आपने फील्ड्स बनाई वो कॉलम आपने ऐड करने हैं। अब वो कॉलम ऐड करने के जब आप ऐड कॉलम्स में आए तो आपके पास देखिए सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, एक्टिविटी स्टेप्स का है, कॉस्ट का है, डेट्स का है, इस तरह से एक यूजर डिफाइंड फील्ड्स का है। यूजर डिफाइंड फील्ड्स के अंदर आपकी जो अपनी तीनों फील्ड्स जो बनाई हैं वो तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। यूजर डिफाइंड फील्ड्स का जो ग्रुप है उसमें ये तीनों फील्ड्स मौजूद हैं। आपने ये तीनों फील्ड्स जो हैं कॉन्फिडेंस लेवल, क्वांटिटीज और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तीनों आपने क्या किया, आपने ऐड कर ली। ठीक है, ये तीनों जो आपने ऐड की तो आपने बेसिकली क्या किया, अब आप देखिए, अब आप ये तीनों कॉलम्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप इस तीनों को सिलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे जो कॉलम्स हैं ये इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों कॉलम्स को बारी बारी इस साइड मूव करवा दें और जब ये इस तरफ मूव हो जाए तो आप क्या करें, अप्लाई क्लिक करें एंड ओके कर दें। ठीक हो गया। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास यूजर डिफाइंड फील्ड ऐड हो चुकी होगी। जिस तरह से आप ये देखिए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास ये आ रहा है, इसमें क्या डाटा आएगा, टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। देन क्वांटिटीज आ रहा है, इसमें क्या डाटा आएगा, नंबर। एंड देन कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, इसमें क्या आएगा, इंडिकेटर्स। इसमें इंडिकेटर्स का डाटा यहाँ पे शो होगा। सो अब देखिए कि यहाँ पे देखिए इसने टेक्स्ट डाटा शो किया हुआ है, यहाँ पे नंबर डाटा आ रहा है और यहाँ पे इसका इंडिकेटर आ रहा है। स्टूडेंट्स ये चीज़ जो आपने देखी, इस चीज़ को ज़रा एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये किस तरह किया जाता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कमिंग बैक टू द सॉफ्टवेयर, हम लोग देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फील्ड्स अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, आप एंटरप्राइज में आते हैं और एंटरप्राइज में यूज़र डिफाइंड फील्ड्स का एक ऑप्शन है आपके पास। आपने क्लिक किया, आपने कहा यार कि मुझे एक कॉलम ऐड करके दो जिसमें हम कह लेते हैं, हम अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल पर्सन होगा इसका, ठीक है, उसका नाम लिख देंगे। तो उसका अकाउंटेबल बंदा कौन है, ठीक, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, और ये बंदे का नाम होगा, इसलिए डाटा टाइप टेक्स्ट रख लिया हमने। देन अगेन हमने कहा कि यार अकाउंटेबल का चलो कर लिया, दूसरी चीज़ हम कहते हैं क्वांटिटी रख लेते हैं। यहाँ पे हम किसी चीज़ की क्वांटिटी चलो डाल देंगे फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। और क्योंकि नंबर होगा क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लिया कि यार ये कॉलम मुझे नंबर का चाहिए। एंड देन हमने एक कॉलम ऐड किया, ये था रिस्क। सपोज कर लें हमने वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल देखा था, यहाँ पे हम रिस्क नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, कि रिस्क कितना है, रिस्क इंडिकेटर, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग इसकी टाइप इंडिकेटर रख लेते हैं। ना मैंने ये देखिए 3 फील्ड्स आपके सामने ऐड कर दी और तीनों फील्ड्स की डिफरेंट टाइप, क्वांटिटी की टाइप मैंने नंबर रखनी थी। ये देखिए कि मैंने तीनों की डिफरेंट टाइप्स भी ऐड कर दी और तीनों फील्ड्स क्रिएट कर दी। नाउ जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ, मेरी ये 3 फील्ड्स क्रिएट हो गई हैं, बट मुझे फील्ड्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रही इस एरिया में। आई कैंट सी माई फील्ड्स। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मैंने अभी तक वो फील्ड्स एज अ कॉलम ऐड ही नहीं किया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कॉलम्स में आ जाता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलम क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक्टिविटी स्टेप्स यहाँ आ रहे हैं, कोड्स यहाँ आ रहा है, कॉस्ट, डेट यहाँ आ रही है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स यहाँ एंड पे आ रही हैं। ये देखिए ये तीनों मेरी जो यूज़र डिफाइंड फील्ड्स हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं स्टूडेंट्स अकाउंटेबल भी चाहता हूँ नज़र आए, ओके, क्वांटिटी भी चाहता हूँ, ओके, एंड रिस्क इंडिकेटर भी चाहता हूँ, ओके। और मैं इन तीनों तरतीब ऐसे चाहता हूँ कि मेरी एक्टिविटी नेम के बाद मुझे ये तीनों चीज़ें नज़र आएँ। सो देखिए अकाउंटेबल यहाँ मूव कर दिया मैंने, रिस्क इंडिकेटर भी यहाँ मूव कर दिया और क्वांटिटी भी यहाँ मूव कर दी। ठीक हो गया। सो मैंने तीनों कॉलम्स जो हैं वो एक्टिविटी नेम के बाद इंसर्ट कर दिए, अप्लाई किया और ओके कर दिया। स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास सारा आ रहा है डाटा। अकाउंटेबल के अंदर मैं चाहूँ अगर तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ,
फॉर एग्जांपल कासिम। ठीक हो गया। सॉरी, आई थिंक मेरे से फील्ड्स की जो टाइप है वो चेंज हुई है। हम दोबारा ये चीज़ें हमें केयर करनी है। ये देखिए, इसको हम दोबारा से ये हम शो कर रहे हैं आपको इसलिए कि ये आप इस चीज़ को देख लें, गलती भी हो सकती है। देखिए अकाउंटेबल मेरे से इंडिकेटर हो गया, मैंने कहा नहीं यार ये तो इंडिकेटर नहीं है, ये तो टेक्स्ट टाइप है। और रिस्क इंडिकेटर था वो ये इंडिकेटर था। ओके, अब देखिए, अब मैं जब इसको क्लोज कर रहा हूँ ये करके, सो स्टूडेंट्स जब हमने ये कॉलम ऐड कर दिए रिस्क इंडिकेटर के, तो आप देखिए कि जो क्वांटिटी है उसमें मैं लिख सकता हूँ 56 बिकॉज इट्स अ नंबर फील्ड। ओके, इसी तरह से जो मेरा रिस्क इंडिकेटर है वहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो इंडिकेटर मैं चाहूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह जो मेरा अकाउंटेबल का नाम है यहाँ पे मैं नाम लिख सकता हूँ, सपोज कीजिए कासिम। ठीक है, ये बंदा अकाउंटेबल है इसका। सो इस तरह से जो यूजर डिफाइंड फील्ड्स हैं आप इनको ऐड कर सकते हैं और ये आपको हेल्प आउट करेंगी ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट प्लानिंग। स्टूडेंट्स लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। सो नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को याद हो तो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर किस तरह से था कि इट वाज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से, एंड देन इस तरह से बनता चला जाता था एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप किस तरह से बना सकते हैं, देखिए कि आप एंटरप्राइज में जाएंगे, एंटरप्राइज में आपके पास ऑप्शन है ओबीएस का। आपने एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है ये शो हो गया, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये डायलॉग बॉक्स के फीचर्स बड़े सेम हैं। ये देखिए ऐड का बटन आपके पास मौजूद है कि अगर आप कोई नोड ऐड करना चाहें डब्ल्यूबीएस की तरह तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिलीट या मर्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कट या कॉपी करना चाहें जिस तरह से मैंने बात की, या पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कट कर लेंगे तो ये पूरा पीस कट होके अगर आप उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। सो आप जो है कट कॉपी पेस्ट के जो फीचर्स हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपके पास ये देखिए कि इंडेंटेशन के लिए एरोज हैं कि आप चीज़ों को इंडेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से डब्ल्यूबीएस में था। सो इसी तरह से एक आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ का इस तरह से एरो आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर आप इसे क्लिक करेंगे और फिल्टर बाय तो आपको करंट ईपीएस या प्रोजेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। सो जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप अपना ओबीएस क्रिएट करना शुरू करें। यू कैन क्रिएट योर ओबीएस। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू क्रिएट दिस ओबीएस। हम लोग अभी करके देखेंगे कि हम लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिए और हमने देखिए इसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया। हमने कहा कि हमारा सबसे ऊपर जो है टॉप पे वी हैव गॉट टीम लीड, हमारे पास सबसे ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर है, एंड देन उसके नीचे एक टीम लीड इम्प्लीमेंटेशन है और एक टीम लीड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। इन दोनों टीम लीड्स के अंडर दो हमारे सब इंजीनियर्स हैं और क्यूए डेवलपमेंट के लोग हैं। हमने ये एक ओबीएस फर्जी ओबीएस बना लिया और इस ओबीएस को हम अप्लाई कर देंगे अपने प्रोजेक्ट पे। लेट्स सी, इस काम को जरा करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे एंटरप्राइज में ओबीएस में चले जाएंगे। ठीक हो गया, ओबीएस में हम ऐड करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि पहला हमारा ओबीएस का वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक हो गया, इसके अंदर फिर हम कहते हैं कि ऐड कर दो टीम लीड डेवलपमेंट, और एक और ऐड कर देते हैं टीम लीड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक हो गया, हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का जो टीम लीड है ये दो लोग हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर होंगे। डेवलपमेंट का बंदा है उसके अंडर कौन होगा, उसके अंडर हमारा एक होगा
रिक्वायरमेंट इसके नीचे हम रख लेते हैं एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर रख लेते हैं जो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, और एक हम इसके नीचे रख लेते हैं जो हमारा डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम रख लेते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर। ठीक हो गया, ये हमारे बन गया रिसोर्स। लेकिन आप देखिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कौन है जी, टीम लीड डेवलपमेंट है। ओके, एक लेवल में इसको आगे मूव कर देता हूं। और टीम लीड डेवलपमेंट के अंदर कौन है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर है। ओके, ये देखिए एक लेवल आगे मूव करूंगा जब मैं इसको, टीम लीड डेवलपमेंट के अंदर कौन है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर है। ठीक हो गया। सो पहले मैं इन सबको एक लेवल आगे मूव करवा देता हूं, सो दैट कि मैंने क्या करना है, ये देखिए मैं इसको एक लेवल नीचे मूव करके एक लेवल आगे कि टीम लीड डेवलपमेंट के अंडर आ जाए, और डेवलपर भी टीम लीड डेवलपमेंट के अंडर आ गया। इसी तरह से टीम लीड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर आ गया। सो अब मेरा ऑब्वियस जो फॉर्मुलेट हो गया है, ये देखिए कि सबसे ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर दो टीम लीड्स हैं, इस टीम लीड के नीचे ये लोग हैं और इसके नीचे ये लोग हैं। सो मेरा OBS इज इन प्लेस। मैं इसको क्लोज करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरा OBS जो है वो बन चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है आप OBS क्रिएट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने प्रिंटिंग को देखा कि किसी स्पेसिफिक इंटरवल के दरम्यान प्रिंटिंग करनी हो या डिवाइड लाइन के हिसाब से प्रिंटिंग करनी हो तो कैसे करनी है। उसके बाद हमने WBS की बात की और हमने कहा कि जो हमारा प्राइमावेरा है ये प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है और ये WBS को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करता है। हमने एक जगह पे जाके WBS क्रिएट किया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और फिर एक्टिविटीज़ को एसोसिएट किया उस WBS की नोड्स के साथ। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने कस्टम फील्ड्स देखी कि अगर न्यूमेरिक, टेक्स्ट या इंडिकेटर टाइप की कस्टम फील्ड्स ऐड करनी हो तो हम कैसे ऐड करेंगे। जब वो ऐड हो गई, उनको शो करवाने के लिए हमने कॉलम्स इंसर्ट किए और कस्टम फील्ड्स के ग्रुप में जाके हमने वो जो कॉलम्स थे उनको टूवर्ड राइट मूव किया तो वो हमें शो हो गए। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो चीज़ थी हमारे पास नेक्स्ट, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और यहाँ पे हम आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग अभी तक जो चीज़ें कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। विद ऑल दीज वर्ड्स आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।